Hi everyone. So I welcome each one of you to this Omkara with Halim webinar in which you will learn a lot today about the divine energies and how the divine energies help us once we get connected to Ma Kali and Ma Baglamukhi. So they are very, very powerful goddesses. And today we are here to learn more about them. And let me just tell you that this is not a tantra class or a black magic class कि आप लोगों को डर लगे कि हम लोग यहाँ क्या सीखने वाले हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है. इनफैक्ट ये जब आप सीख लेते हो ओमकारा विद हलीम, your life becomes much better because I have experienced this for myself that आपकी लाइफ बेटर हो जाती है. जो नेगेटिव लोग हैं वो आपकी लाइफ से अपने आप ऑटोमेटिकली हटने लग जाते हैं. आपके एनिमीज आपसे ऑटोमेटिकली दूर हो जाते हैं. एवरीथिंग हैपेंस ऑटोमेटिकली, मतलब because you are connected to a very powerful energy. You are connected to Ma Kali and she is a Jagruk Devi and she, वो इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाती है, इसीलिए हम उनसे कनेक्ट हो रहे हैं. एंड अभी जो दिन चल रहे हैं, व्हाई आई ऑप्टेड दिस टाइम, बिकॉज अब जो दिन चल रहे हैं, जो चालू होने वाला है, वो है सावन. सो दीज एनर्जीज आर वेरी पावरफुल. इफ यू कनेक्ट टू महादेव एंड माँ काली, they really help you in each and every aspect of your life. So you all are lucky ones and privileged ones to just join this webinar also, because Ma Kali ki permission ke bina nobody is allowed to even enter this premises. Believe me, koi bhi nahi aa pata hai yahan pe. So thank you so much to each one of you again for coming and joining this webinar today. I am Meena Bed, multimodality healer and trainer, and I'm your spiritual coach today. Forever. I mean, I should be. I feel that. And today we are going to learn a lot. Now, today is 1st of July. Why I opted today's date is because, I wish good luck to each one of you. कि अगर आप ये क्लास ज्वाइन करें तो मोस्ट वेलकम. अगर आप नहीं भी करें तो भी आपको आज कुछ ना कुछ आप लेके जाने चाहिए, बिकॉज आप यहाँ आए हो तो आप खाली हाथ नहीं जाओगे. यू विल टेक अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम मी एंड माँ काली, who is right in front of me. And as you begin this month today with something new, so some kind of new, energies are going to enter your life, because this is the world of spirituality. When you connect to Ma Kali, which you cannot do without her permission, if she wants you to join the workshop, only then it will happen. Otherwise, it will not happen. Believe me, बहुत सारी बातें आती है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उसके बाद ही आप ये वर्कशॉप ज्वाइन कर पाते हो, बिकॉज शी ऑल्सो टेस्ट यू कि आप अंदर से कितना तैयार हो उनसे कनेक्ट होने के लिए, बिकॉज इट्स नॉट सो इजी टू कनेक्ट टू हर. Because I'll just share an experience of my sister who might be here, I don't know. So, she also thought for a very long time. मैं कभी किसी को अपने कोई भी relatives को force नहीं करती कि आप ये workshop मुझसे करो, वो करो, because I don't like it. So she also, kept on listening to me. She also watches my Instagram videos and everything. And when she herself felt कि नहीं, मुझे भी ये क्लास करनी है. Last time she also joined this class of mine. She learned it from me, and as a professional teacher only I trained her. And she also has evolved a lot. She feels better. And बहुत एक शिफ्ट आता है, एक बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आता है आपकी लाइफ में जब आप ये सीख लेते हो, और जब माँ काली से आप जुड़ जाते हो. आपका जो शनि का महादशा भी चल रहा होता है ना, तो वो भी हल्का हो जाता है, बिकॉज माँ काली इज ऑल अबाउट beyond time. She is beyond time, and this truly connects you to her. And here we are going to talk about Ma Baglamukhi also, who gives you lot of protection. अगर आपके कोई भी कोर्ट केसेस चल रहे हैं, कोई भी लीगल मैटर्स चल रहे हैं, उसमें भी आपको बहुत मदद मिलती है. सो यहाँ आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है टू डिवाइन गॉडेसेस के साथ. So if you have come here, it is for some divine purpose, and you are also guided by the divine themselves. That is my belief. I believe कि कोई भी यहाँ बिना भगवान की या बिना देवी की कृपा से नहीं आ सकता. Because if you are meant to have it, you will have it. And now let's come to this topic of what is Omkara with Halim, because आप लोगों को बहुत जिज्ञासा होगी, बहुत क्यूरियोसिटी होगी कि ये आखिर है क्या, बिकॉज इसका नाम भी बहुत डिफरेंट है, और क्या क्या कवर होगा इस वर्कशॉप में. और मैं जो अब 5 दिन का वर्कशॉप ला रही हूँ, उसमें आप करोगे क्या एक्चुअली. And my old students have also joined today's workshop. It will be an eye-opener for them also, because they will also learn a lot. Because whenever I come on this pedestal, कुछ ना कुछ नया अपने आप मुंह से निकलता है, जो पिछली बार नहीं निकला था. Something new always emerges out of the mouth. Because क्या होता है, वो माँ की कृपा होती है कि वो शब्द वो ही निकलते हैं जो actually meant for each one of you है. So Omkara with Halim is a very
वेरी ब्यूटिफुल, अ क्विक एंड वेरी पावरफुल हीलिंग मोडालिटी. जब आप ये हीलिंग मोडालिटी, ये क्या है? एक हीलिंग मोडालिटी है जिसमें बहुत सारे मंत्रास की पावर, एक बीज मंत्रास की जो पावर होती है वो सिंबल्स के अंदर डाली गई है. अब ये जो सिंबल्स होते हैं जो मैं आपको सिखाऊंगी, जब तक मुझे मुझे खुद को सेटिस्फैक्शन नहीं होता है कि आप तरीके से बना रहे हो सिंबल, आई डोंट लीव माय स्टूडेंट्स. यू कैन आस्क माय ओल्ड स्टूडेंट्स, मतलब मुझे भी, because it's a karma. See, I am generating new students in you, and this cycle has to go on. You have to teach to other people. So जब आप ये सीख लेते हो तो आपको भी दूसरों को सिखाना है. तो the moment you learn this, you have to teach to other people. The moment you learn this, you start generating money. कोई ना कोई तरीके से आपके लाइफ में प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस और प्रोटेक्शन सब कुछ ऑटोमेटिकली आने लग जाता है, बिकॉज आपका जुड़ाव एक छोटी शक्ति से नहीं है. इट इज विद माँ काली. So this is connected with the goddess energies, and it has been introduced by S.K. Saini ji. He did a lot of research on this subject. उन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च की थी इस सब्जेक्ट में, and then he has given this to us. हम लोगों को उन्होंने ये बहुत ज्यादा रिसर्च. Please keep your cameras on, otherwise my teammate is going to remove those people whose cameras are off. Please, it's a request. मैं harshly नहीं बोलना चाहती हूँ, because it's very easy also to communicate with you and tell you and teach you, right? So SK Saini ji ने इस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च की थी. ही वॉज कनेक्टेड टू द डिवाइन एनर्जीज, एंड उन्होंने ये सिंबल्स के अंदर जितने भी मंत्रास की ताकत होती है वो इस सिंबल्स के अंदर डाल दी. तो इसीलिए ये जो सिंबल्स है, डिफरेंट हीलिंग मोडालिटीज होती है. जैसे रेकी में भी हमको सिंबल्स मिलते हैं, करुणा रेकी में भी सिंबल्स मिलते हैं, बट ये जो हुंकारा विद हलीम में जो सिंबल्स हमको मिलते हैं, ये 5th डायमेंशन हीलिंग मोडालिटी है, और इसीलिए ये 5D है. आई मीन ये हम पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो इट विल नॉट वर्क. ये हमको हमेशा अपने फिंगर्स से ही ड्रॉ करने पड़ते हैं, तभी ये वर्क करते हैं. इसीलिए इसको हीलिंग ऑन द गो भी बोलते हैं. मतलब जैसे आप कहीं पे भी जा रहे हो तो आप कभी भी कोई भी स्थिति में बस खाली सिंबल्स आपको याद रखने हैं, वो आप कभी भी किसी की भी हीलिंग कभी भी कर सकते हो. सो दिस इज कॉल्ड एज हीलिंग ऑन द गो. यू डोंट नीड एनी हीलिंग किट फॉर इट. बस आपको सिंबल्स अपने दिमाग में हमेशा सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करके रखने हैं, एंड व्हेनेवर यू नीड यू कैन जस्ट डू इट. कभी आप कोई ऐसे माहौल में जाओ जहां आपको लगता है कि बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी है इस माहौल में, लाइक आई एम एन ओपन पर्सन, आई गो टू एवरी प्लेस, सब जगह मैं जाती हूँ. सो व्हेनेवर आई एम गोइंग टू कहीं डेथ हो गई है या हॉस्पिटल, तो आई जस्ट गार्ड माई सेल्फ विद दोज सिंबल्स. आई मेक अ वॉल अराउंड मी. सो व्हेन आई एम गोइंग टू दैट प्लेस, आई एम टोटली प्रोटेक्टेड. नथिंग इज गोइंग टू अफेक्ट मी energetically. And this also protects you from any kind of evil's eye and psychic attacks. So here we are going to get connected to two divine energies, that is Ma Kali and Ma Baglamukhi, and we are going to learn a lot of sacred symbols and बीज mantras. हम मंत्रास भी सीखेंगे. हम सीक्रेट जो ये सिंबल्स हैं इनको एक सीक्रेट रखा गया है. अब आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे मिल जाएगा हुंकारा विद हलीम का, वो गूगल पे मिल जाएगा, पर वो जो सिंबल्स हैं वो आपको कभी भी नहीं मिलेंगे यूट्यूब पे, बिकॉज वो वर्जित है. वो एसके सैनी जी ने वर्जित किया है कि आपको फ्री में वो सिंबल्स अगर आपको मिलेंगे तो दे विल नॉट वर्क फॉर यू. कोई भी चीज एक गुरु से एक शिष्य को जब मिलती है तो ही वो वर्क करता है. सो यू हैव टू टेक एन अट्यूनमेंट फॉर इट. एंड हाउ आई अट्यून यू इज with the help of Ma Kali, and when I do the attunement, it is not a normal attunement. It is done by Ma Kali herself. It is believed in this healing modality that Ma Kali herself comes and she attunes her students, all of them via me, which is a channel. I mean, I'm just a channel, I'm just a medium to give attunement to you. That symbols में जो है आपके एक एक चक्रा में आपके जितने भी hands है उन सब में वो symbols स्थापित कर देती हूँ. जब उनकी स्थापना हो जाती है आपके अंदर, तब they start working with practice. ऑब्वियसली कोई भी चीज एक दिन में आपको रिजल्ट नहीं देती है. आप अगर आज अच्छा खाना खाओगे तो आपको आज ही थोड़ी उसका रिजल्ट मिल जाएगा. विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद कंसिस्टेंसी, यू स्टार्ट गेटिंग रिजल्ट्स. तो आपको हर चीज में आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, थोड़ी आस्था देनी पड़ेगी, थोड़ा फेथ, थोड़ा इंटेंशन, थोड़ा कंसिस्टेंसी, एंड इट वर्क्स ब्यूटिफुली. बिलीव मी, आई हैव बीन practicing this. I have been attuning so many students, and it brings a shift in each one's life. Nobody goes empty-handed in this workshop. The symbols, they have a vibration of more than 3,80,000 mantras, and we can use them for different purposes. अब इनकी जो शक्ति होती है, ये जो symbols है जो हम use करते हैं,
इनको आप हल्के में मत लेना, दे आर वेरी वेरी पावरफुल। बिकॉज ये क्या करते हैं, जब हम इसको हम इसमें एक कंपल्शन होता है, वो है 11 दिन का सिद्धिकरण प्रैक्टिस, विच इवन आई हैव डन व्हेन आई वाज लर्निंग दिस। सो सबको ये 11 दिन का सिद्धिकरण प्रोसेस जरूर करना पड़ता है। उससे क्या होता है, सिद्धिकरण मतलब क्या होता है, सिद्धिकरण का मतलब उन जो सिंबल्स हैं उनकी सिद्धि आपके एक एक चक्रा में, जब मैंने आपके अंदर वो स्थापना कर दी उन सिंबल्स की, उसके बाद वो जितने भी सिंबल्स है वो आपके एक एक चक्रा में स्थापना एकदम परफेक्टली अंदर जड़ जाते हैं, एकदम अच्छे से आपके चक्रास में चिपक जाते हैं, आपके हैंड्स में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे हम हीलिंग करते हैं दूसरों की। सो एवरीवेयर वो जड़ जाते हैं, अंदर हमारे अंदर घुस जाते हैं, तो वो अच्छे से वो वर्क करते हैं। हमारा जो पूरा ये सिस्टम है, इसको पूरा थॉरोली क्लीन कर देते हैं, एंड इट हील्स आवर लाइफ, इट मेक्स आवर लाइफ बेटर इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। और जब आप माँ बगलामुखी से कनेक्ट होते हो, तो शी गिव्स यू मैग्नेटिज्म, मतलब एक एक अट्रैक्शन, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपके अंदर आ जाता है कि people start getting attracted to you, the positive people, not the negative ones. Of course negative लोग भी आएंगे, because सबको healing चाहिए, वेम्पायर्स भी आएंगे, एनर्जी वेम्पायर्स, सबको ही आएंगे, बिकॉज सबको आपके पास आके इतना अच्छा फील होने लग जाता है, दैट एनर्जी, दैट फील इज डिफरेंट। Once you learn it, for that you have to experience it, you have to learn it, and you have to install it in your system. So the people who have used these for a very long time have observed that it helps in clearing entities. Entities क्या होती है, जो entities होते हैं, जो मतलब जो souls होती हैं, जो ना तो पूरा जा पाती है और ना यहाँ रह पाती है, तो वो बीच में कहीं हैंगिंग होती है, तो वो क्या होता है, एंटिटीज बन जाते हैं। तो उसको भी क्लियर करने में ये बहुत मदद करती है। लॉट ऑफ पीपल लर्न दिस हीलिंग मोडालिटी जस्ट टू remove the entities from their home. And I remember one of my students, I don't want to take the name, but she had a problem. She had her kids in America, and वो वहां पे उनके घर में कोई एंटिटीज थे, और वो यहाँ रहते रहते उसने बहुत क्लेंजिंग किया विद दीज सिंबल्स, ओमकारा विद हलीम के सिंबल से उसने उनके घर की बहुत क्लेंजिंग की, एंड देन फाइनली शी वाज एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम दोज एंटिटीज। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूविंग एडिक्शंस। अगर आप चाहते हो कि मेरे बेटा या हस्बैंड या anybody is addicted to some particular thing, so you have to consistently practice these symbols on that person, and it helps you to remove those addictions also. It helps to remove negative emotions. अगर कोई ट्रॉमा से गुजर रहा है, घर में कोई डेथ हो गई है या कोई ब्रेकअप से गुजर रहा है, सो वो जो नेगेटिव इमोशंस और पैटर्न्स हो जाते हैं उसको भी काटने में ये मदद करता है। एंड दिस इज अ वेरी पावरफुल हीलिंग मोडालिटी फॉर कॉर्ड कटिंग। कॉर्ड कटिंग में तो ये बहुत ही हेल्प करता है, बिकॉज वंस वी आर कनेक्टेड विद माँ काली एंड माँ बगलामुखी, तो हमारे जितने भी कार्मिक कॉर्ड्स, हमारे जो रोज के कॉर्ड्स हैं, जो अनऑथोराइज्ड कॉर्ड्स हमारे चक्रास से कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे हमारी एनर्जी ड्रेन होती है, वो सारे कॉर्ड्स हमारे क्षीण होने लग जाते हैं, कटने लग जाते हैं, खत्म होने लग जाते हैं, obviously with practice, with consistency. So I would say that once you learn this, you should keep practicing it. एक बार आप 11 दिन का सिद्धिकरण करो, उसके बाद आप ब्रेक दे दो, then again you can, अगर आप रोज 11 दिन का सिद्धिकरण नहीं भी कर सकते, but at least once a month or twice a month you can take out time to heal yourself with the healing technique which I teach you in this healing modality. Because we all know that this healing holds, I mean any kind of healing holds a very a lot of importance in our life. हमारी जिंदगी में healing की एक बहुत 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 बड़ी importance है. That is why you all are here. You are in some way connected to the healing energies. You all are in some way connected to the spiritual energies, to the divine energies. आप लोग सबको विश्वास है कि ये work करता है, ये कहीं ना कहीं ये हमको help करता है. That is why you all are over here. So here you will be getting attunement of all the symbols. हमारे total 6 symbols हैं, and they start working for you. And after the practice of सिद्धिकरण for 11 days you can heal yourself. सबसे पहले हमारी खुद की healing हो जाती है जब हम 11 दिन practice करते हैं, तो हमारी जितनी भी negativity है, हमारे अंदर जितने भी बीमारियां पनप रही है, वो सब अपने आप कटने लग जाती है. Because whenever माँ काली is connected to you, तो वहाँ negativity तो वहाँ टिक, no negativity, black magic, evil eye, psychic attack, nothing can stay there for a long time. तो जैसे ही आप ये प्रैक्टिस करते हो, वो अपने आप सफाई होने लग जाती है, आपकी क्लेंजिंग होने लग जाती है ऑन एन इनर लेवल. आपके जितने भी चक्रास है वो खुलने लग जाते हैं. आप किसी दूसरे की भी हीलिंग कर सकते हो, डिस्टेंस हीलिंग भी कर सकते हो. एंड सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपने घर का जो वास्तु दोष है, या अपने ऑफिस में कोई वास्तु दोष है, हम सबके घर बने हुए हैं,
आप उसमें तोड़फोड़ तो कर नहीं सकते। सो वास्तु जो है वो भी ठीक होने लग जाता है। जो एक मैं पीडीएफ आपको देती हूँ, विच इज अ पीडीएफ ऑफ क्लियरिंग द वास्तु दोष, उसमें सारे डायरेक्शंस एंड देयर इज समथिंग इन दैट, जो जब आप उसकी स्थापना अपने घर में करते हो, वो जो उसकी स्थापना भी इस बार मैं सिखाऊंगी कि उसकी प्रॉपर तरीके से स्थापना कैसे की जाती है घर में। आप एक छोटा सा प्रिंट आउट भी ले सकते हो, उसका बड़ा भी लगा सकते हो, एज पर योर विश, वंस यू ज्वाइन। सो उसकी स्थापना जब आप अपने घर में कर देते हो, तो आपके घर में कोई भी वास्तु दोष हो, जैसे अगर आपके साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है या नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है, नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है और साउथ वेस्ट में अगर आपका बेडरूम नहीं है, कुछ और बना हुआ है, जैसे किचन है, तो वो क्या है, आपको दोष क्रिएट करता है, वो आपकी लाइफ में हैवॉक मचाता है। तो व्हेन यू कीप दिस यंत्र इन योर होम, it keeps a check on the vastu dosh also, and it starts eliminating all the vastu dosh from your home. So after practicing this and learning the teachers level, अब आप इसके बाद एक teachers level होता है जो सिर्फ 1 day का class होता है। It's just a 45 minutes, half an hour session in which you can learn. It's optional, but I would insist that everybody who comes here should learn that teachers level, and you have to actually you don't have to break this chain. ये एक chain है कि आज मैंने आपको सिखाया, आप किसी और को सिखाओ, तो क्या है, ये chain continue रहती है, and in every home we have a healer. So that is the thought behind it, that हर घर में एक healer हो, क्योंकि once you become a healer, your thoughts change, your negative patterns जो है वो कटने लग जाता है, and the aura of your entire home changes basically. क्योंकि हर घर में जब healer होगा, तो अपने आप उस घर का वातावरण बेटर होगा, and the whole house, basically when I am doing puja part, when I am doing chanting, when I am chanting the mantras, मेरे घर में अगर कोई नहीं भी कर रहा है तो भी उसको भी इसका फल मिलता है, because they are also in my aura all the time and they are also absorbing it in an indirect way. The second goddess we will talk about over here is Ma Baglamukhi, that we connect to, and she is called as Pitambari. See, I'm wearing yellow clothes today. So I'm also connected to Ma Baglamukhi since a very long time before I did Humkara with Halim. And for that reason only, I think she has come in my life. So she loves wearing yellow clothes. I don't know whether you've heard about her name or not, but she is one of the 10 goddess of 10 Mahavidya. अब हमारी जो 10 महाविद्या होती हैं उसमें 10 goddesses होती हैं, जो you know, उसका भी एक स्टोरी है. वुड यू लाइक टू हेयर अ स्टोरी, बिकॉज दिस इज ऑफ द टॉपिक, बट मुझे बहुत मजा आता है. स्टोरी सुनना है आपको सोनाली इतना जोर जोर से? ओके, सो आई विल जस्ट टेल यू क्या हुआ था. ओके, सो कीप योरसेल्फ म्यूटेड. आई विल जस्ट टेल यू द स्टोरी इन शॉर्ट ओनली, कि 10 महाविद्या का ये स्टोरी है. बिकॉज वंस यू आर कनेक्टेड टू माँ काली, द नेक्स्ट स्टेप इज 10 महाविद्या. दैट इज व्हाट आई लर्नड आफ्टर होमकारा विद हलीम. तो जब माता पार्वती and Shivji, you know that they are husband wife, and then Mata Parvati insisted that I want to go to the yagya which is organized by Maharaja Daksh, who was her father. So Shivji ने उनको मना करने की कोशिश की कि नहीं नहीं जाना, because we are not invited. तो उनको क्योंकि पता था कि उसका निष्कर्ष क्या होगा, तो उन्होंने मना किया कि मत जाओ. तो देन माता पार्वती जब शिवजी जब मना कर रहे थे और बोल के जा रहे थे, तो माता पार्वती वो जिस भी डायरेक्शन में जा रहे थे ना, वहां एक देवी वहां खड़ी थी उनका रास्ता रोकने के लिए. तो वो 10 दिशाओं में गए और 10 दिशाओं में वहां एक देवी थी, एंड शी जस्ट बेसिकली एक देवी प्रकट हुई. शी जस्ट वांटेड, माता पार्वती जस्ट वांटेड टू कन्वे दिस टू हर हस्बैंड, दैट इवन आई एम वेरी पावरफुल, इवन आई हैव लॉट ऑफ पावर्स. तो शिवजी ने फिर मना नहीं किया, फिर बोला यू डू एज यू विश. एंड these are the 10 forms of Mahavidya, that is they have come out from Mata Sati. माता सती के वो 10 फॉर्म्स है. एक तो है हमारे नव दुर्गा, जो माता पार्वती के 9 फॉर्म्स है, और एक है 10 महाविद्या, दैट इज द 10 फॉर्म्स ऑफ सती. सती माता के अंदर से जो 10 फॉर्म्स निकले थे, तो उसमें माँ काली इज द फर्स्ट 10 महाविद्या, एंड माँ बगलामुखी इज द 8th महाविद्या. सो जब आप इन दोनों से कनेक्टेड हो जाते हो ना, बिलीव मी, ऑल द एनिमीज, बिकॉज आपके खिलाफ कोई नेगेटिव चीज बोल भी नहीं पाएगा. मतलब क्या होता है, माता बगलामुखी शी actually holds the tongue of the person who's speaking against you, and she really helps you in court cases, in legal matters, and she gives a lot of strength, protection. and ये हरिद्रा देवी में प्रकट हुई थी, and इन्होंने पृथ्वी को बचाया था. तो इसीलिए she is like a protectress goddess, and she gives us protection from black magic. When you learn her symbol, so what happens is all the negative cords वो सारे कट होने लग जाते हैं, and एक आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन जाता है कि आप कहीं पे भी जाओ तो आपके कोई भी साइकिक अटैक्स
कोई भी evil जाए नहीं मिलेगा, and she makes sure that you gain victory over everything. मतलब आपको हमेशा हर चीज में जीत हासिल हो. But see, like all healers, we also have to go through these tests which are put by Mata herself. हम जितना इवॉल्व होते हैं ना, हम इस जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में हम जितना इवॉल्व होते हैं, हमारे टेस्ट लिए जाते हैं कि आप कहाँ तक पहुंचे हो, एंड उस टाइम आपको अपने आप को बहुत स्ट्रांग रखना है. But once you are connected to these devis, she will always make sure that you gain victory over even any kind of legal matters. Because last time ek she was applying for some elections in her city. I don't remember her name, but she came here to learn this healing modality because she knew that Mata Baglamukhi बहुत help करती है legal matters में, politicians को, businessmen को, and she is one goddess you must pray to if you want your protection, if you just want to let go of your enemies, without doing anything yourself. So she bestows you with lots and lots of abundance and blessings. Now, why should you learn this healing modality? Basically, बहुत लोगों को एक क्वेश्चन आता है कि हम सीखे यार, और भी तो इतनी है, हम रेकी सीख लेंगे, हम कैंडल मैजिक सीख लेंगे, हम और कुछ सीख लेंगे, हम वायलेट फ्लेम सीख लेंगे. दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर हीलिंग मोडालिटीज, क्योंकि ये हमारी जो ब्रह्म नाड़ी होती है, उसको एक्टिवेट करता है. हमारे जो 7 मेजर चक्रास है, और हमारे माइनर चक्रास तो बहुत सारे हैं. पूरे बॉडी में बहुत सारे माइनर चक्रास होते हैं, माइनर हैंड चक्रास होते हैं, माइनर फीट चक्रास होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे चक्रास होते हैं. उन सबको ये क्या है, क्लेंजिंग करता है. इसके जो सिंबल्स जब हम स्थापना करते हैं उसको अपने अंदर, तो ये सारे चक्रास की क्लेंजिंग करने लग जाता है. तो जल्दी से आप बीमार नहीं पड़ोगे, क्योंकि आपकी ऑलरेडी आपकी ऑरा में, सी वी हैव अ ऑरा, एवरीबडी नोज अब कि हमारा ऑरा क्या होता है. हमारा आभा मंडल, हमारे चारों तरफ जो हमारे रहता है वो आभा मंडल होता है, और उसमें होते हैं हेल्थ रेज. जब आप बीमार होते हो तो वो हेल्थ रेज होता है ड्रूप हो जाते हैं. तो जब आप स्वस्थ रहते हो तो वो हेल्थ रेज स्टैंडिंग रहते हैं. When you use these symbols on your aura, on anybody's aura whom you are healing, तो वो क्या होता है, हेल्थ रेज स्टैंडिंग रहते हैं, आभा मंडल आपका शुद्ध रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, कि you have a magnetic personality and you start attracting people, you start attracting positivity, you start attracting money, you start attracting money from various sources. And आपकी जो 3 नाड़ीज होती है, of course you must be knowing, if you know the chakras, you must be knowing that there are 3 नाड़ीज. आपको बहुत नॉलेज गेन होएगी. अगर आपको नहीं पता है तो ये आपको आज पता चलेगा कि हमारी 3 नाड़ियां होती है. हमारा जो यौगिक शरीर होता है उसमें 3 नाड़ियां होती है, सुषुम्ना, ईड़ा एंड पिंगला. तो ये जो हमारी 3 नाड़ीज होती है, ये भी एक्टिवेट होती है, ये भी बैलेंस होती है. और हमारे जितने भी 9 मेजर चक्रास, नाउ व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट द 9 मेजर चक्रास, बिकॉज 7 तो हमारे शरीर में होते हैं. इफ यू don't know, I will just tell you a brief about the chakras, that we have 7 major chakras, starting from below, the root chakra, then the sacral chakra, then the solar plexus, heart chakra, throat chakra, agya chakra, the third eye, and the crown chakra. अब जो 2 मेजर चक्रास होते हैं वो हमारे होते हैं क्राउन चक्रा के जस्ट ऊपर, the soul star and the one more chakra, holy dove. So these are the major chakras. इनको हिंदी में त्रिकुटी भ्रिकुटी बोलते हैं, इंग्लिश में इनको सोल स्टार चक्रास बोलते हैं. दे आर अ पार्ट ऑफ कॉजल चक्रा एंड द सोल स्टार चक्रास. तो वो क्या है, वो आपके खुलने लग जाते हैं. सी देयर इज अ लोटस पेटल ऑन योर हेड. बेसिकली हमारा जो क्राउन चक्रा होता है, यहाँ पे एक लोटस है. हमारे जितने भी चक्रास है ना, उन सब में लोटस होता है, जिससे हम जो शुद्ध प्राणा होता है वो गेन करते हैं और अशुद्ध प्राणा हम छोड़ते हैं. The chakras are breathing all the time. हमारे ऑरा में, आभा मंडल में वो चक्रास होते हैं, and they throw negative prana and they gain positive prana. तो जब हमारा क्राउन चक्रा, जो हमारे जितने भी पेटल्स है, सहस्त्राहार चक्रा हम बोलते हैं क्राउन चक्रा को, यहाँ पे जितने भी 1000 पेटल्स होते हैं लोटस के, वो खुलने लग जाता है. तो जो हमारा सोहम चक्रा है एंड जो हमारा सोल स्टार चक्रा है, there are different names of these above 2 chakras. So I might say anything like कभी मैं सोहम चक्रा बोलूंगी, कभी सोल स्टार चक्रा, because these are different names. तो वो चक्रास भी हमारे एक्टिवेट होने लग जाते हैं. So जब वो एक्टिवेट होते हैं तो क्या होता है, हम इवॉल्व होने लग जाते हैं. हमारी जर्नी में हमको स्पिरिचुअलिटी समझ में आने लग जाती है, बेसिक चीजें जो लाइफ की है वो समझ में आने लग जाती है. और हमारी तीनों नाड़ियां जो है, जो हमारी चंद्र नाड़ी है, विच इज द ईड़ा, जो हमारी मून चंद्र नाड़ी यानी कि मून नाड़ी, जो हमारी सन नाड़ी है, द सोलर नाड़ी विच इज द पिंगला, एंड द सुषुम्ना विच इज द सेंटर नाड़ी, ये तीनों हमारी बैलेंस होने लग जाती है. और
हमारी जो कुंडलिनी है, जो बेस ऑफ द स्पाइन में कुंडलिनी शक्ति होती है, वो क्या है, जो ब्रह्म नाड़ी है, जो बेस ऑफ द स्पाइन में ब्रह्म नाड़ी जो होती है, जो कुंडलिनी को जागृत करती है, दैट स्टार्ट्स गेटिंग अवेकन्ड, वो अवेकन होने लग जाती है, एक्टिवेट होने लग जाती है, वो मूव होने लग जाती है. द मोमेंट योर कुंडलिनी awakens, what happens in your life? Lot of physical changes, spiritual changes start happening in your life. इसके बहुत सारे फायदे होते हैं. आपकी विजडम एनहांस हो जाती है, आपकी इंट्यूशन एनहांस हो जाती है, सब चीज को बढ़ाता है. इंट्यूशन एनहांस होएगी तो कैसे हेल्प होगी आपको? जैसे रोजमर्रा की लाइफ में सी इंट्यूशन एनहांस होगी, तो अगर आप टैरो कार्ड रीडर है तो आपको हेल्प होएगी. आप जब टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हो किसी का, तो आपकी इंट्यूशन से आपको आंसर्स मिल जाते हैं कि सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है. अगर आप टैरो कार्ड रीडर नहीं भी हो तो भी आपको रोजमर्रा की लाइफ में अगर इंट्यूशन आ जाए कि मुझे इस शेयर में पैसा डालना चाहिए या इस शेयर में, तो आपको इंट्यूशन आ जाता है कि नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट फॉर मी, मुझे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है. दैट इज अ फीलिंग. इंट्यूशन क्या होता है? इट्स जस्ट द इनर लिटिल वॉइस इनसाइड यू. एक फीलिंग आने लग जाता है कि नहीं, मुझे यहाँ पैसा डालना है. एंड देन यू नो, उस छोटी सी फीलिंग को जब आप सुनते हो, जब उस लिटिल इनर वॉइस को आप सुनते हो, तो यू स्टार्ट प्रोग्रेसिंग इन योर लाइफ. आपको उसमें फायदा होने लग जाता है. सो इस तरह से इंट्यूशन पावर जब एनहांस होती है, तो आप चाहे बिजनेसमैन है, चाहे आप स्टूडेंट है, अगर स्टूडेंट को पता चल जाएगा कि स्टूडेंट भी सीख सकते हैं ये. सो अगर उनका इंट्यूशन एनहांस हो जाए, तो उनको ये फील होगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मुझे ये पढ़ के जाना चाहिए एग्जाम में, तो ऑब्वियसली दे विल ऑल्सो एक्सेल. If the student is not learning, the mothers can also practice the symbols on the students. Like I used to practice the symbols on my son when he was giving the exams of class 12. So it really helps them to, you know, increase the focus, concentration. और जब आप ये बहुत लंबे टाइम तक इसको प्रैक्टिस करते हो, तो ऑब्वियसली आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में इवॉल्व होते जाते हो. ऑटोमेटिकली चीजें आपके सामने आने लग जाती है, नेगेटिव चीजें आपके लाइफ से झड़ने लग जाती है, एंड यू स्टार्ट जनरेटिंग अ लॉट ऑफ मनी, एंड प्लस यू आर प्रोटेक्टेड. क्योंकि क्या होता है, जब हम ज्यादा जनरेट अचानक करने लग जाते हैं मनी, तो साइकिक अटैक्स होने लग जाते हैं. तो साइकिक अटैक होंगे तो यू कैन जस्ट कट इट ऑफ विद दीज सिंबल्स, विद द हेल्प ऑफ दीज सिंबल्स. यू जस्ट प्रैक्टिस इट एंड इट विल बी ऑल गॉन. क्योंकि हम रोज तो प्रैक्टिस करते नहीं है, हम सीख लेते हैं हीलिंग मोडालिटी, बट हम रोज करते नहीं है प्रैक्टिस. तो वापस आपको ऐसा फील होने लग जाए कि मैं जब नेगेटिविटी की तरफ जा रही हूँ, नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहे हैं मेरे बिजनेस, मेरे वर्क पे, मेरे ऊपर, तो यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द सिंबल्स, एंड यू नो, अगेन इफ यू प्रैक्टिस इट फॉर 2-3 days, अगेन वापस सब चीज नॉर्मल होने लग जाता है. सो अगर हमको पहले से ही इंट्यूशन आ जाए, हमारे विजडम एनहांस हो जाए, तो हम कितना अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, हमारा स्पिरिचुअल लेवल कितना एनहांस हो सकता है, हमारा कम्युनिकेशन, बिकॉज माँ बगलामुखी इज ऑल्सो अबाउट कम्युनिकेशन. वो हमारा, अगर हमारे चार्ट में हमारा जो मार्स ग्रह है, मार्स को हिंदी में क्या कहते हैं, मंगल ग्रह. सो मंगल ग्रह अगर हमारा वीक है, हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में अगर हमारा मंगल ग्रह वीक है, तो when you connect to माँ बगलामुखी, तो आपका जो मंगल ग्रह है वो भी स्ट्रॉन्ग होने लग जाता है, बिकॉज शी इज ऑल अबाउट स्ट्रेंथ, शी इज ऑल अबाउट पावर एंड विजडम. तो आपको विजडम मिलने लग जाता है, आपका कम्युनिकेशन जो है वो बेटर हो जाता है, एंड यू बिकम मोर इम्पैक्टफुल. जो भी आप बोलोगे ना, आपके शब्दों से सामने वाले पे एक इम्पैक्ट होने लग जाता है. जैसे आपने बोल के छोड़ दिया, उस टाइम उसने कोई वापस उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बट वो धीरे धीरे उसके दिमाग में है ना असर होने लग जाता है. And plus you start having balanced chakras and a very strong aura. You don't fall sick frequently. अगर आप बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हो, तो आपका वो जो बॉडी है, जब आपका ऑरा इतना स्ट्रांग होगा, चक्रा स्ट्रांग होंगे, तो आपका जो फिजिकल स्ट्रेंथ बॉडी में आ जाता है, एंड यू डोंट फॉल सो सिक. इट क्लियर्स एनी काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक. अगर किसी ने कुछ किया कराया है तो वो भी खत्म होने लग जाता है. प्लस इट इंक्रीजेस योर मैनिफेस्टेशन पावर. मतलब आज आप कोई भी एक लेटर लिख रहे हो टू योर हायर सेल्फ, टू द यूनिवर्स, वो मैनिफेस्ट जल्दी होने लग जाता है बिकॉज ऑफ दीज सिंबल्स, एंड दे डोंट वर्क ऑन पेपर. यू हैव टू प्रैक्टिस देम विद योर फिंगर, बिकॉज फिंगर्स, हमारे फिंगर्स में माइनर चक्रास होते हैं, हमारे फिंगर्स में एनर्जी होती है. वो उस एनर्जी के साथ कॉन्टैक्ट में आके फिफ्थ डायमेंशनल सिंबल्स जो है, दे स्टार्ट वर्किंग. प्लस हमारी जो भी पास्ट लाइफ मेमोरीज है, मतलब जो भी हमारी नेगेटिव मेमोरीज है, जो हमको कट करना है अपने कामिक कॉर्ड्स, वो भी धीरे धीरे क्षीण होने लग जाते हैं, डिसइंटीग्रेट होने लग जाते हैं, खत्म होने लग जाते हैं धीरे धीरे. ऑब्वियसली विद कंसिस्टेंसी यू हैव टू गो ऑन विद इट, यू हैव टू प्रैक्टिस. जब आप कोई भी चीज सीखते हो, जब आप उसमें एनर्जी एक्सचेंज डालते हो, मनी डालते हो, आप सीखते हो, तो आप उसका पूरा फायदा लो, उसको चीज को यूज करो अपनी लाइफ में, ताकि आपकी लाइफ तभी तो बेटर होएगी. आप खाली उसको सीख के छोड़ दोगे तो देन व्हाट इज द फायदा ऑफ डूइंग इट.
So now the symbols which I teach you, these are actually very powerful clearing symbols. Clearing symbols यानी कि ये negativity को clear करते हैं. And once you are attuned, even during the attunement, you yourself feel that Ma Kali is coming and she is just, pulling all the negative cords, karmic cords away from you. But that is just a, fraction of it. But you have to practice it every day. At least for 11 days सिद्धिकरण we do, ताकि हमारी पूरी thorough cleansing हो जाए, हमारे cords कटने लग जाए, ताकि जो भी negativity है वो हमारे life में नहीं हो. तो जब हम ये मल्टीपल लेवल्स पे हम ये जब यूज करते हैं इसको, हमारा माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट सब कुछ क्लीन हो जाता है, सब कुछ बेटर हो जाता है, एंड हमारी लाइफ में हमको बेटर रिजल्ट्स, एक्सीलेंट रिजल्ट्स हमको मिलने लग जाते हैं. प्लस your home is all the time protected. Even if you are traveling somewhere for 10-15 days, your home is always protected, your family is also protected. And this is the best part of this healing modality, that you just have to practice the symbols in one go. You just have to practice and everything is done. That's it. You don't have to do much about it. You just invoke and you just practice the symbols, put it on your home, and then you can go for a holiday and everything is protected. And the best part of this healing modality is that अगर आप कोई healer नहीं है, बहुत बड़े पहुंचे हुए इंसान नहीं है, बहुत बड़े candle magic practitioner नहीं है, बहुत बड़े astrologist नहीं है, astrologer या numerologist नहीं है, या tarot card reader नहीं है, कोई background नहीं है आपको healing का, तो भी आप ये healing modality सीख सकते हो, because this is connected with the divine energies. You can learn it from the scratch. आपको इसके लिए कोई base की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई लोग आते हैं मेरे पास, बोलते हैं कि मैम हमने तो कभी कुछ भी नहीं सीखा, हमको तो बिल्कुल समझ ही नहीं आता है कि एनर्जी क्या होता है, चक्रा क्या होता है. बिकॉज when I tell you to put it in a particular chakra, I will also tell you the location of that chakra. So I teach in such a way that even if you are a basic student who doesn't know anything, who doesn't have a background of healing or anything, तब भी आप ये सीख सकते हो. So this is the best part of this healing modality, कि इसके लिए कोई बेस की जरूरत नहीं है, कोई भी इंसान कभी भी ये सीख सकता है. If you are no foundation with any kind of religion, or you don't have to be a healer or something to learn this healing modality. And if you are someone who wants to feel good, मतलब आप अगर ऐसे इंसान हो जिसको हमेशा feel good factor चाहिए और अपना एक clear दिमाग चाहिए, and you want to work on your life force energy, because our life rotates all around the life force energy, how we feel in our mind, how we feel in our body. So this gives you basically greater vitality to your body and mind, as life force is the chi and the bridge between body and mind. हमारे शरीर और हमारी आत्मा के बीच में जो लाइफ फोर्स होता है वो एक ची यानी कि एक एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी वो है. And that is why this works deep in your body. ये क्या है, बहुत deep इसलिए है because these are 5D symbols. ये dimensional symbols है, ये इसीलिए work करते हैं, and ये आपकी पूरी body, आपकी spiritual body, energy body, physical body, सब चीज की cleansing कर देते हैं. So you have to come here to experience it for yourself and feel clearer and content and have a deep connection with your soul and your mind. So these days a lot of parents also complain, like recently one of the parents, Vibha, she requested me कि मैम आप एक रील बनाओ जिसमें कि आप ये बताओ, क्योंकि मेरे बच्चा है, अब वो टीनेजर है और वो पढ़ता नहीं है, और मैं कितनी बार उसको टोकूं कि पढ़ ले, because these days there are so many distractions, video games, mobile, laptop, I mean, this Instagram, Facebook, so much of social media, so many things, reels, they consume a lot of time from us. So parents, she told me that, ma'am, आप एक reel बनाओ जिसमें आप ये डालो कि बच्चों का concentration कैसे बढ़ता है. Now, when we use the last 4 symbols, उससे क्या होता है, because they are connected to Ma Saraswati and they have been taken out from the Mrugal Sanjeevani, which is a very holy book. So उसमें क्या होता है, जो kids का जो concentration है and focus on studies, वो better होने लग जाता है when you use those symbols on your child's crown chakra. तो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा बच्चे distracted है ना, वो distraction धीरे धीरे कम होने लग जाता है. So it works like a savior for the parents also, and it helps in increasing focus, concentration, and it also brings about a lot of peace and harmony in the relationships. Again, the last 4 symbols जो है वो क्या करते हैं, वो जो रिलेशनशिप के अंदर बीच में जो नेगेटिविटी चल रही है, झगड़ा झमेला, वो भी क्लेश खत्म होने लग जाते हैं, धीरे धीरे शांति हो जाती है, घर में एक पीसफुल माहौल हो जाता है. एंड
जितना भी हार्मनी एंड लव है वो क्रिएट होने लग जाता है विद दीज सिंबल्स. सो इट क्लेंसेस योर ऑरा, इट इंक्रीजेस फोकस, इट इंक्रीजेस कॉन्सेंट्रेशन. जो हमारा ब्रेन का जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होने लग जाता है. क्लैरिटी मिलती है हमको. हमारा हमारा जैसे हमको क्लैरिटी नहीं है, हम बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं दिन भर. जैसे फॉर एग्जांपल छोटी छोटी चीजें कि हम ये खरीदें या ये खरीदें, अपने बच्चे को इस यूनिवर्सिटी में भेजें या उस यूनिवर्सिटी में. ऑफ कोर्स यू कैन डू टैरो कार्ड रीडिंग ऑल्सो, बट अगर आपका अंदर से इंट्यूशन एनहांस हो जाए तो नथिंग लाइक इट. तो अगर आपको अंदर से एक लिटिल वॉइस आए कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे लाइफ में ये करना है, मुझे ये पाथ चुनना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां नहीं जाना. सो क्या होता है, ऑब्स्टिकल्स अपने आप हटने लग जाते हैं. एनिमीज तो जैसे ही आप माँ बगलामुखी से कनेक्ट होते हो, एनिमीज अपने आप दूर हो जाते हैं. यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, यू आर जस्ट कनेक्टेड विद माँ बगलामुखी. अपने आप वो एनिमीज आपसे धीरे धीरे वो दूर हो जाएंगे. सो लाइफ से सब नेगेटिव चीजें अपने आप धीरे धीरे हटने लग जाती है. वास्तु दोष करेक्ट होने लग जाता है. एंड आई हैव ऑल्सो सीन दिस वर्क इन माई ओन लाइफ. माँ बगलामुखी helps you a lot in legal cases, in all the politicians, businessmen, in all these things. आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स है, वो धीरे धीरे दूर होने लग जाते हैं. एंड इफ यू आर अ स्टूडेंट और गवर्नमेंट ऑफिशियल, इट हेल्प्स यू ऑल्सो, इट हेल्प्स ईच पर्सन. सो वंस यू लर्न दिस, यू फील फंटेस्टिक फ्रॉम इनसाइड. मतलब आप जब ये सीख लेते हो तो आपको अंदर से खुद को बहुत अच्छा फील होता है. आपको एक सेफ्टी फील होती है कि इवन इफ आई डोंट हैव एनीथिंग, आई हैव यूज्ड माय सिंबल्स एंड आई हैव प्रोटेक्टेड माय सेल्फ. सो यू लिफ्ट अप योर एनर्जी by connecting to the divine energies and learning this beautiful powerful healing modality. So क्या होता है कि हम जब ये सीख लेते हैं तो अपने आप हमारी लाइफ बेटर हो जाती है और हम इवॉल्व हो जाते हैं और हमेशा हम प्रोटेक्टेड रहते हैं हमारे अपने बनाए हुए ही कवच में, हमारे अपने बनाए हुए सिंबल में. So this was all introduction about it, and now we are going to begin this class on the 6th of July in the evening. Mostly we will begin the class, and इसका सिद्धिकरण का जो वीडियो है वो मैं आपको दूंगी, वो हमेशा के लिए आपके पास रहेगा. उसको देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हो. आई गिव यू द वीडियो ऑफ द म्यूजिक विच इज इंपॉर्टेंट, विच यू हैव टू लिसन रेगुलरली. देन आई विल गिव यू द पीडीएफ नोट्स. शायद 6 इसके पीडीएफ नोट्स हैं, 6 पार्ट्स में आई हैव डिवाइडेड इट. आई विल बी गिविंग यू दैट. You will be getting a ISO certified certification which holds a little more value than the normal certificate. Plus you will be getting a lot of knowledge, and you will be getting a yantra in the form of a PDF which you take a printout, and I will tell you how to do the sthapna of that yantra, so that vastu dosh is also corrected in your house. Plus you have to practice those symbols regularly. आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा उसको, ताकि जब आप प्रैक्टिस करो तो विद कंसिस्टेंसी you feel better and you feel more evolved. Now just give me a minute. I will just switch off with the recording, and then you can ask questions.